آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ میٹرک امتحانات میں اس سال بھی نقل ہوگی۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شرف علی شاہ نے کہا کہ کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ میٹرک کے امتحانات میں اس سال بھی نقل ہوگی۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شرف علی شاہ نے کہا ہے کہ کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ یہ چیٹنگ ہوئی ہے تو چیٹنگ کو جو ہے وہ کرو کرنا بڑا مشکل بھی ہے، اور خاص طور پہ یہ واٹس ایپ اور جو ہے وہ اس موبائل فون کے زمانے میں تو اور مشکل ہے۔ چیٹنگ 50 سال پہلے جب میں نے 9th کا امتحان دیا تھا اس زمانے میں چیٹنگ ہوتی تھی، تو کسی مائی کا لال پاکستان نے چیٹنگ ختم نہیں کر سکا ہے۔ تو کم کرنے کے لیے کم از کم اقدامات جو ہے وہ کرنے جو ہوں گے، لیکن سول رسپانسبلٹی جو ہے وہ سی ایس سینٹر سپرنٹینڈنٹ پہ ہوتی ہے، جو امتحان سے 1 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے وہاں پہ آتا ہے۔ اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے یا مالک ہوتا ہے یا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کہیں گے جی آپ کو ہم ہٹا دیتے ہیں اگر کوئی کسی بلنڈر کیا تو، ورنہ پھر ان کی بھی ایسوسیشنس ہیں، پھر ان کی بھی مافیاز ہیں۔ اب مافیاز پہ میں نہیں آتا، وہ بہت بڑی جو ہے وہ دکھ دائق خبر ہیں کہ کس کی کون سی مافیا ہے اور وہ مافیا کیا رول پلے کرتی ہے۔ آپ نے سنا کہ چیئرمین کا کہنا ہے کہ کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا۔ میٹرک کے امتحان میں اس سال بھی نقل ہوگی، اور چیئرمین کا اس حوالے سے جو کہنا ہے آپ کو سنا دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف کراچی فہیم صدیقی بھی موجود ہوں گے۔ اپنے ناظرین کو فی الوقت ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ میٹرک کے امتحانات میں پہلے سے ہی کہہ دیا ہے، بجائے یہ کہ کوئی اقدامات کیے جاتے نقل کو روکنے کے لیے، لیکن یہ تو سب الٹ ہو گیا ہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور ان کا بیان آپ کو سنوا دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے واضح طور پر کہ کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا ہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے نقل روکنے میں ناکامی کا بھی اعتراف کر لیا ہے، اور اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا، ان ڈگریز کی کیا ویلیو ہوگی، اس پڑھائی کی کیا ویلیو ہوگی، یہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ آج کے آنے والے بیان سے ثابت ہو گیا ہے۔ بہت دل بھی دکھا ہے کہ روکنے کی بجائے کہا جا رہا ہے کہ کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا ہے۔ میٹرک کے امتحانات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، اور کیا کہنا ہے کہ کس طرف یہ پڑھائی جا رہی ہے جس میں نقل جو ہے سر عام ہوگی، کیا اس کا نقطہ نظر ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے، بے بس کیوں دکھائی دے رہی ہے انتظامیہ، اور آج جو سامنے بیان آ گیا ہے وہ بھی کافی دل دکھنے والا بیان ہے کہ چیئرمین نے کہہ دیا کہ کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے بیورو چیف کراچی فہیم صدیقی سے۔ سر، بہت دکھ ہوا ہے اس بیان پر کہ اقدامات کرنے کی بجائے ہر سال ایسا ہوتا ہے، اور اب صاف کہہ دیے کہ کوئی مائی کا لال نقل نہیں روک سکا ہے۔ جی، انتہائی اہم عہدے پر بیٹھے ہوئے، چیئرمین کے عہدے پر بیٹھے ہوئے چیئرمین میٹرک بورڈ ہوتے ہوئے شرف علی شاہ کا یہ بیان جو ہے، یہ پبلک میں دیا گیا بیان جو ہے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بودا بیان ہے۔ ان کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ وہ 3 سال سے اس عہدے پر تعینات ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ جناب نقل نہیں روک سکتے، تو پھر آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پبلک کو؟ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں طلبہ کو، اساتذہ کو، کہ جو کچھ ہوگا وہ نقل کے ساتھ ہوگا، اور جو بھی ایگزامس ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن یہی ہوگی کہ ہر سال جو ہے ایگزامس میں بھی نقل ہوگی، اس کے بعد جو ریزلٹس ہوں گے اس کے اوپر بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ دیکھیے، ماضی میں بھی یہ چیزیں بہت عرصے سے جاری ہیں، اور اس کے اوپر جو اب تو سچویشن یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ ہماری جو ڈگریز ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں چیئرمین میٹرک بورڈ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس نقل مافیا کے خلاف جاتے اور اس کے خلاف کچھ ایسے اقدامات کرتے کہ جن کے ذریعے جو ہے نقل کو روکا جا سکتا۔ انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے تو کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا۔ ہمارے زمانے طالب علم کے اس کا کہنا نقل ہوتی تھی، بھائی یعنی آپ بھی نقل کر کے جو ہے وہ آگے آئے ہیں، آپ نے بھی نقل کر کے ایگزام پاس کیے اور آج آپ چیئرمین بن کے بیٹھ گئے۔ یہ جس نوعیت کا بیان ہے یہ بہت مایوس کن بیان ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وزیر تعلیم ہے، ان کو سخت نوٹس لینا چاہیے کہ چیئرمین کے عہدے پر بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ اس نوعیت کا بیان دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نقل تو ہوتی ہے اور اسے روکنا میرے لیے ناکام ہے۔ پھر 4 سال انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں جو ہے وہ سینٹرز جو ہیں
وہاں پہ جو عملہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی انوالو ہوتا ہے اور وہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا کے خلاف جو وہ خوفزدہ نظر آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کون لڑے گا. یہ جو سچویشن ہے یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ ناکام ہے اور اگر وہ اپنی ناکامی کا خود اعتراف کر رہے ہیں اپنے جملوں کے ذریعے تو انہیں اس عہدے سے ہٹ جانا چاہیے. اگر وہ نہیں ہٹتے ہیں اور اس سے براجمان رہنا چاہتے ہیں تو پھر جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں انہیں فوری طور پر جو ہے ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. یہ ایک بہت ہی بودا بیان ہے, یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اور ایک ذمہ دار شخصیت کی جانب سے اس وقت یہ بیان آیا ہے جب جو میٹرک کے امتحانات ہیں ان میں صرف 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں اور کچھ 4.5 لاکھ بچہ ان ایگزامس میں جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے. وہ بچہ جو پڑھ کر ایگزام دینے جائے گا اس کے اوپر اس بیان سے کیا گزری ہوگی, وہ اسے دیکھ کر کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اگر جو ہے محنت کر کے پیپر دے رہا ہوں گا تو میرے برابر والا جو ہے اگر نقل کر کے دے رہا ہوگا تو وہ اور میں برابر ہو گئے. یہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شرف علی شاہ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. چیئرمین میٹرک بورڈ سے استعفے کا مطالبہ ہونا چاہیے. وہ اگر خود استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے. اچھا فہیم صدیقی, ہم دیکھتے ہیں کہ اب دوسرے ممالک میں ہماری تعلیم کی کیا ویلیو رہ جائے گی. اب تو یہ صرف میٹرک بورڈ نہیں, اے لیول او لیول کے بھی بچے آؤٹ ہو گئے ہیں, کیا ویلیو رہ جائے گی اب؟ جی بالکل, یہ بھی خبریں ہیں کہ جو فیصل آباد میں جو کیمبرج کے بھی ایگزامس ہو رہے ہیں ان میں ریاضی کا پرچہ جو ہے وہ لیک ہوا ہے اور ظاہر ہے کیمبرج کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے اس کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں, لیکن یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے کہ مافیاز ہیں ہمارے یہاں, اور وہ مافیاز جو ہیں ان کا کنٹرول اتنا ہے کہ وہ اس تمام سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے حاوی ہو جاتی ہیں. اور یہی نظر ہمیں جو ہے وہ کیمبرج کے امتحانات میں بھی نظر آیا ہے, یہی ہمیں جو ہے انٹر میٹرک کے ایگزامس میں بھی نظر آتا ہے. اور پھر جب اتنی بڑی شخصیت جو ہے اتنے اہم عہدے پر براجمان ہے وہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے تو صورتحال جو ہے وہ مزید تشویشناک ہو جاتی ہے. انٹرنیشنلی ہماری ڈگریز کو جو ہے وہ اب کوشچن کیا جانے لگا ہے. ہماری ڈگریز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مزید تعلیم حاصل کیجیے. ہمارے یہاں جو ہے وہ ہماری ڈگریز کو ایکویولنٹ نہیں لیا جاتا کسی بھی باہر کی ڈگری کے مقابلے میں. تو جب یہ سچویشن ہو جب یہاں پہ اتنی اہم شخصیت اس طرح کا بیان دیتے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہے انٹرنیشنلی بھی جو ہے اسے مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. وہاں پر ہمارے لیے جو ہے مزید پرابلم سامنے آتی ہیں. بچوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں انہیں یہ جو بیچ ہے جو انہوں نے ابھی پاس کر لیا ہوتا ہے اس کی تعلیم انہیں دوبارہ باہر جا کر حاصل کرنا پڑ جاتی ہے. تو ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کی جانب سے اس نوعیت کے بیان کے بعد ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ تو ایشو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ دیکھیں بہت آسان ہے, اس کو روکنا کوئی اتنا بھی مشکل نہیں ہے, صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کو بیسیکلی سینٹرز کے اوپر جو ہے وہ ویجیلنس کے لیے جو عملہ آپ تعینات کرتے ہیں اس کو آپ نے اختیار دینا ہوتا ہے. وہ جو ہے اس کو اس بات کا اختیار ہونا چاہیے کہ فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین آل پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ طارق شاہ نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر کہیے گا اتنا بڑا بیان سامنے آ گیا ہے, چیئرمین کے عہدے پر بیٹھا بندہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی مائی کا لال بھی نقل ہونے سے نہیں روک سکا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ جی ابھی میں نے آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے یہ نیوز سنی ہے اور بڑا افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہی اگر اس سچویشن کو قابو پانے میں جو ہے نا ناکام رہے ہیں تو وہ ایک پورا جو میکینزم ہے پھر وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. اور ہم تو بارہا گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے رہے ہیں, ایون بلکہ آپ کے چینل کی توسط سے ہم سی ایم صاحب سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ اس جو چیٹنگ کا پورا ایک جو سلسلہ ہے اس کو فوری طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے, ایک میکینزم لے کے آئے جس سے جو ہے وہ ہمیں چیٹنگ بچوں کے اندر جو ایک بڑھتی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ ہماری نسل کو ختم کر رہی ہے. اور جس طرح بچے جو ہے وہ چیٹنگ میں ڈپینڈنٹ ہو کے پورا سال پڑھتے نہیں ہیں اور اینڈ میں چیٹنگ کر کے پاس ہونے کے ارادوں سے جو ہے نا وہ سینٹرز میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو فیسلٹیز بھی فراہم کر دی جاتی ہیں. تو اس کو فوری طور پہ کوئی بین لگایا جائے تاکہ ہماری جو نسل ہے وہ پڑھنے کی طرف آئے اور اس طرح برباد نہ ہو. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ مافیا کی جڑ آخر نکلتی کہاں سے, شروع کہاں سے ہوتی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ تو ایگزامینیشن سسٹم کے اندر تو ہم پورے طرح انوالو نہیں ہوتے, لیکن ہاں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جہاں پر سینٹرز ہوتے ہیں, جہاں پر انویجیلیٹرز ہوتے ہیں اور اس کے آس پاس ارد گرد
नवा में जहाँ पर पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले पेपर जहाँ पहुँचते हैं, ये सारा पूरा जो एक सिस्टम है ये सब इन्वॉल्व होता है। और 12 आपके चैनल में भी पिछले साल भी जो है वो पेपर लीक होने की खबरें चलाई गई थी। तो अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए कि पेपर पहले से लीक ना हो, जब तक पेपर जो है वो का टाइम ना हो, पेपर जो है वो अपने सेंटर पे ना पहुंचे, तो उससे पहले पेपर अगर लीक ना हो तो बहुत सारी चीटिंग जो मामलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, हम देखते हैं जिस तरह से नकल माफिया सरगर्म है और जिस तरह से बयानात अब सामने आ गए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं, तो अब हमारा क्या वैल्यू रह जाएगी दूसरे ममालिक में जो यहाँ से पढ़कर बच्चे जाएंगे? क्या वैल्यू आप समझते अब रह जाएगी हमारी पढ़ाई की? नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये बड़ी शर्मनाक सी बात है कि अगर इंस्टीट्यूशन खुद जो है वो इनके आगे सरेंडर हो गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, इसमें चीफ मिनिस्टर साहब क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं, जितने भी बोर्ड हैं उनके, तो उनको अब इसको टेकअप करना चाहिए कि इन मामला, क्योंकि आप एक और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि हमारे सिंध के अंदर ही सिर्फ ये मामला रह गए। अगर आप पंजाब KPK की तरफ जाएं तो वहाँ ऐसा तस्वर भी नहीं है अब कि वहाँ पे चीटिंग हो। तो इसके लिए पूरी गवर्नमेंट को, जब हमेशा हम कहते जरूर हैं कि हमने तालीम की इमरजेंसी नाफिज की हुई है, तो आज ये मौका है कि इसको हकीकी तौर पर जो है उसको इमरजेंसी बुनियादियों पर जितने भी इंतजामात हैं वो गवर्नमेंट खुद देखे, मिनिस्टर साहिबान खुद देखें, ताकि ये मैसेज जो है ना जो अभी गलत हो चुका है उसको पॉजिटिव करें और अच्छे तरीके से एक साफ शफाफ एग्जामिनेशन कराएं। और यही एक वजह है कि आज जो है वो हमारी जो यूथ है वो जो है वो बोर्ड, सिंध बोर्ड को या आपके कहें गवर्नमेंट बोर्ड को छोड़कर कैम्ब्रिज की तरफ जा रही है, आखान बोर्ड की तरफ जा रही है, क्योंकि इस बोर्ड से अब उम्मीदें जो हैं बहुत कम हो गई हैं। बिल्कुल, और हमने देखा है कि A लेवल और O लेवल के पर्चे भी लीक होना शुरू हो गए हैं, ये भी खबरें सामने आ गई हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? ये वाकई बहुत शर्मनाक ये अलमिया सामने आ रहा है। बिल्कुल, इसमें यही वही सारी सिनेरियो है कि गवर्नमेंट जब तक इस मामलों में सीरियस नहीं होगी, हम और आप मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना मैकेनिज्म है पेपर्स का वो उन्हीं के हाथों में होता है। अगर वो इसको सिंसियरिटी के साथ एक अच्छा मैकेनिज्म क्रिएट कर दें, और हमने बारहा बहुत सारी सजेशंस हम देते रहे, जिसको जो है वो सुन तो लिया जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं कराया जा रहा होता। तो अगर उन सजेशंस को अगर आप अमल दरामद करा लें तो शायद बहुत अच्छे तरीके से पेपर्स जो है ना विदाउट चीटिंग इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। अच्छा, आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? स्टार्ट कहाँ से किया जाए? देखिए, सबसे पहले हमने तो ये कहा था कि जो पेपर्स होते हैं उनको सील्ड पैक्ड पेपर्स में जो है वो बॉक्सेस के अंदर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट किया जाए, जिसको मीनवाइल अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो वो खोल कर पेपर देख भी ना सके। दूसरी चीज ये है कि सेंटर्स हैं, ये छोटे छोटे सेंटर्स जो बनते हैं उनको खत्म करके बड़े सेंटर्स की तरफ जाया जाए, जहाँ पर 1000, 1200, 1500 बच्चे एक साथ बैठे, और ताकि जब आप सेंटर्स आप मिनिमाइज करेंगे तो उसकी मॉनिटरिंग भी जो है ना वो आसान हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं आपके, जो वहाँ पर एग्जामिनेशन ले रहे होते हैं, वो भी जो है उनकी भी पहले स्क्रूटनी होनी चाहिए, उनका इंटरव्यू होना चाहिए, फिर उनको जो है वो इजाजत देनी चाहिए कि वो एग्जामिनेशन रूम के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर गवर्नमेंट जो है ना संजीदगी से चाहे तो हम जरूर अपना एक रिटर्न दोबारा से दे सकेंगे। लेकिन अभी क्योंकि पेपर 7 तारीख से पूरे सिंध में स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो मेरी तो सिर्फ गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो सेंटर्स हैं उसमें पेपर जो है, एक तो जब पेपर प्रिंट हो रहा है उस वक्त, और पेपर जब तक बच्चों तक पहुंच रहा है, जब तक का अभी कंट्रोल अगर ये कर लें और तो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेपर लीक होने के बगैर वहाँ पहुंच सकेगा। और जो सेंटर्स हैं वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो दफा 144 से नाफिज कर ही देते हैं, लेकिन पुलिस भी तैनात की जाए ताकि कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो वहाँ बोर्ड में, वो सेंटर्स के अंदर एंटर ना हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तारिक शाह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी भी मौजूद हैं। कहिएगा, अब मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ तो ये नाइंसाफ़ी ही हुई ना? जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में, इस नौयत के बयान के बाद जो है वो बच्चे जो 3 से 4 दिन के बाद मैट्रिक के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, उनके दिल जो है बहुत बुरी तरह से टूटे होंगे। वो ये सोचते होंगे ज़रूर, उन्हें उनके वालिदैन ये बताते होंगे कि आप नकल के ऊपर आपने नहीं जाना है, नकल नहीं करनी है, लेकिन जब उन्होंने ये बयान देखा होगा, वो देख रहे होंगे 21, तो उनके सामने ये नजर आ रहा होगा कि जो नकल करने वाला है, जो उनके बराबर में बैठकर या किसी और स्कूल में बैठकर नकल कर रहा होगा, यही पेपर दे रहा होगा,
وہ मुमकिन तौर पर नकल करके जो है उनसे ज्यादा नंबर ले सकता है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बना दी है चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने, मैं समझता हूँ। और जो तजावीज़ तारीखा दे रहे हैं, ये बहुत अहम तजावीज़ हैं। जब ये तजावीज़ इनकी तरफ से आती हैं, चाहे ये एक बहुत बड़ी प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट एसोसिएशन है, इनके दर्जनों नहीं सैकड़ों स्कूल हैं, उनकी तजावीज़ पर अमल होना चाहिए। जब ये ऐसी तजावीज़ दे सकते हैं तो ये तजावीज़ जो है इनके ऊपर अमल भी मुमकिन है, काबिल अमल तजावीज़ हैं। जो विजिलेंस का अमला है उसको बाकायदा तौर पर उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो नकल के सारे अमल में मुलव्विस ना हो, नकल माफिया से उसका कोई रास्ता ना हो। और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटर्स विजिलेंस के लोग जो इंसानी मराकज़ में होते हैं उनको भी जो है इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो तलबा को नकल करने से रोकेंगे। और तलबा को जब तक नकल करने से आप नहीं रोकेंगे तो आप बेसिकली जो है एक अच्छी नस्ल जो है वो आगे नहीं ला सकते। ये लोग अगर नकल करके बच्चे जो है आगे जाएंगे तो इनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। जब ये अमली जिंदगी में आएंगे तो इनके लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ये बताना होगा, स्कूलों में भी बताना होगा। इसमें स्कूल के असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है, तारिक शाह का बहुत बड़ा किरदार है, इनकी एसोसिएशन का बहुत बड़ा किरदार है कि ये क्लासेस में ये तलबा को ये बताएं कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने उसमें नकल नहीं करनी है, क्योंकि नकल करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी सलाहियतें जो हैं वो बहुत पीछे रह जाती हैं। और दूसरा शख्स जो है जो नकल नहीं कर रहा वो मुमकिन तौर पर आगे जा सकता है जिंदगी में, किसी हिस्से में तो कम से कम आपको क्रॉस जरूर कर सकता है। तो अच्छी तजावीज़ है, मैं समझता हूँ तजावीज़ के ऊपर अमल होना चाहिए। और ये मुतालबा बिल्कुल मेरा भी है कि इस वक्त जो है इस ऐसे बयान के ऊपर, इम्तिहान से 2 दिन 3 दिन पहले इस बयान के ऊपर चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के खिलाफ जो है वो वज़ीर आला सिंह को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, शॉर्टली सिर्फ बताइएगा कि सूबाई हुकूमत अब क्या करेगी? आपको क्या लगता है, वज़ीर आला या वज़ीर तालीम अब कुछ करेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पर उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई करेंगे। ये कह के कार्रवाई अभी नहीं की जाएगी कि जी अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, इससे सूरत हाल खराब हो सकती है। चलें, अभी अगर नहीं भी होती तो बाद में जरूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड नकल माफिया से खौफजदा नजर आए, एग्जाम से पहले वो खौफजदा नजर आए और उन्हें कह दिया कि नकल से कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता। फिर ये भी बिल्कुल, ये काफ़ी बयान जो है वो दिल दुखा देने वाला बयान रहा है। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे, तारिक शाह हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध काबीना का इजलास कुछ देर में होगा। सूबाई काबीना 12 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। पीपल्स बस सर्विस के लिए नए साल के लिए फंड्स की मंजूरी ली जाएगी। महकमा पुलिस के लिए गाड़ियों की खरीदारी भी एजेंडे में शामिल है। बिन कासिम से थरकोल इस्लाम कोट तक रेलवे लाइन बिछाने के मंसूबे पर भी गौर होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा 12 नुकाती एजेंडे में क्या क्या शामिल है? जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर आला हाउस में शुरू होने वाली है। अब तक इजलास शुरू नहीं हुआ है। तमाम सूबाई वज़रा, मुशीर और सरकारी अफसरान वज़ीर आला हाउस पहुँच चुके हैं। गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही है। सिंध काबीना का ये 3 दिनों में दूसरा इजलास है। 2 रोज़ कबल जो इजलास हुआ था, तवील एजेंडा की वजह से कई फैसले नहीं हो सके थे, तो इसी वजह से आज दोबारा सिंध काबीना का इजलास बुलाया गया है। आज के इजलास का 12 नुकाती एजेंडा है, जिनमें ख़ास तौर पे पीपल्स बस की 2024 और 25 के लिए जो सिंध हुकूमत सब्सिडी फराहम करती है उसके रकम की मंजूरी है, उसके बजट की मंजूरी है। काबीना इसकी मंजूरी दे देगी। प्रोसिक्यूटर जनरल के दफ्तर के लिए 34 गाड़ियों की ख़रीदारी का मसला है, वो भी काबीना के एजेंडा में शामिल है। सिंध पुलिस के लिए गाड़ियों की ख़रीदारी का मसला है, वो भी एजेंडा का हिस्सा है। सिंध काबीना के इस आज के एजेंडा में हैदराबाद वाटर कॉरपोरेशन शामिल है, जिसका नया क़याम अमल में लाया जा रहा है। अगर फैसला हो गया तो हैदराबाद में भी हैदराबाद वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन का क़याम अमल लाया जाएगा। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बजट स्कीमों का मसला है, वो आज उसको हतमी शक्ल दी जाएगी या सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। नए माली साल की बजट की तैयारियों के सिलसिले में ये बजट तजावीज़ हैं जो आज सिंध काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी।
सिंध काबीना के इजलास में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ इदारों के लिए सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान की मुकर्ररी का मनसूबा शामिल है। घोटकी कंदकोट दरियाए सिंध पे जो ब्रिज है वो भी काबीना के एजेंडा में शामिल है। अब देखना है कि काबीना क्या फैसले करती है, कौन से नुकात को मुकम्मल करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल जमाली, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तो जनाब, अवाम के लिए आसान सफरी सहूलियात की फ्राहमी में सिंध हुकूमत सबसे आगे। पेपर्स बस सर्विस की मुसाफिरों के लिए स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करा दिया गया है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह किया है। कैश अदायगी की जगह स्मार्ट कार्ड के जरिए वसूली की जाएगी। इब्तदाई तौर पर सहूलत 2 रूट्स के लिए होगी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मैं कभी भी तनकीद से नाराज़ नहीं होता, मैं तनकीद से सीखता हूँ। ट्रांसपोर्ट के शोबे में हमने सुस्त शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पिंक बस सर्विस को लोगों ने बहुत सराहा। कराची में माजी में रोज़ 25 लाशें गिरती थीं, बम धमाके होते थे। कराची में पानी, ड्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट के मामलात पर तवज्जो दी। बहुत खुशी हो रही है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पिछले कुछ सालों से बहुत अचीवमेंट्स हैं। हमने स्लो स्टार्ट किया। हमारी जो मास ट्रांजिट का सिस्टम है कराची, अनफॉर्चुनेटली शायद एक ही ऐसा शहर होगा जिसकी इतनी बड़ी आबादी है और जिसमें कोई प्रॉपर मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। हमने मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई, हमने इंटरनेशनल एजेंसीज, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ 10-12 साल पहले से काम शुरू किया। वर्ल्ड बैंक, उससे पहले जायका के साथ काम कर रहे थे। और इन सारी चीज़ों में हम अपना एक चीज़ भूल गए कि जी हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, SRTC 1970 में बड़ी अच्छी चला करती थी, उसको हम भूल गए, हमारी अपनी गलती है। So this is an international public-private partnership and the benefit किसको जा रहा है? कराची के लोगों को जा रहा है, कराची के शहरी को जा रहा है। So all of us have come together to benefit the people of Karachi और सिंध हुकूमत का ये फर्ज है, ये मैंडेट है कि वो पूरे सिंध के लोगों की इसी तरीके से खिदमत करे। मैंने आज सुबह वो टेलीविजन पे देखा, कहा कि बड़ी उस पर सिंध सूबा, ये मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड, आई एम हैप्पी। सिंध सूबा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है अपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ काम करने में, और ये सबने एक्नॉलेज किया है। अच्छा, एक तो होता है ना कि बेहतर है, हम बेहतर नहीं, हम बहुत बेहतर हैं। वी लेफ्ट देम फार बिहाइंड। अब वो थोड़े से हमसे कहते हैं, जेलस को उर्दू में कहते हैं, थोड़े से जेलस है दी अदर प्रोविंसेस एंड दे सेइंग ये कैसे हो गया। आई टेल यू हाउ, क्या हुआ। We had the worst flood in the history of this country in 2022. वो फ्लड, अभी बात की थी हलीम साहब ने फ्लड के बारे में कि ऑल इज वेल जब कहा गया था। वो फ्लड मैंने अपनी ज़िंदगी में 76 वाला फ्लड भी देखा है, उससे पहले तो बहुत मशहूर था। लेकिन मुझे जब 2010 का फ्लड था तो उसमें बड़े लोग मेरी गांव में थे जिन्होंने 42 का फ्लड भी देखा था। उन्होंने कहा जी उससे खराब है। और 2010 से 2022 वाला फ्लड बहुत ज़्यादा डैमेजिंग था, दोनों साइड पे था इंडस रिवर के। उसके अंदर अभी फ्लड क्या पानी निकला नहीं था। हमें पता था जो चैलेंज हमारे सामने। हमने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की एंड the government of Sindh was able to raise from these international agencies $1.7 billion. अभी हम IMF से $1 billion में कुछ दिनों पहले लिया था, हम बड़े खुश हुए थे। And we did this in 3 months. The catastrophe was such, obviously human element था, they came and they saw the damage, लेकिन हमारा भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा था, थोड़ा बहुत काम था। और यही वजह है
मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेरे साथ थे, दिस वाज अक्टूबर और नवंबर, लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर अराउंड दिस टाइम, हेलीकॉप्टर में हम 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और उन्होंने नीचे देखा तो मुझे कहते चीफ साहब ये तो बड़ा मसला होगा, हमारा तो अगला सीजन भी गया फार्मर्स का। तो मैंने उन्हें कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सिंध के लोग बड़े रेजिलिएंट हैं, हाँ उन्हें थोड़ी सी हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट अगर हम दे सके तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारा इस साल का यानी 2022-23 वज़ीर और सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध के ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम के सफ़र को आसान बनाया जा रहा है, ऑटोमेटेड सिस्टम से किराए की कलेक्शन में शफाफियत होगी। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत ने ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस मुतारिफ करवाई। अबूरी हुकूमत के दौर में इस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हमारी हुकूमत के आते ही काम शुरू हो गया। Today we are here to inaugurate the automated fare collection system in the People's Bus Service, a one step towards modernizing public transportation in our beloved province. The implementation of this state-of-the-art system reflects our unwavering commitment to enhancing the commuting experience for the people of Sindh. With the automated fare collection system, we are not just introducing a technological advancement, but also we are paving the way of more efficient, convenient, and seamless journey for every passenger who steps into People's Bus Service. This innovation not only simulates the payment process, but also ensure the transparency and accountability in fare collection. Moreover, the introduction of the automated fare collection system aligns with our broader vision of sustainable urban mobility. By promoting the use of public transportation and reducing reliance on private vehicles, we are taking proactive steps towards alleviating traffic congestions, minimizing environmental pollution, and fostering a cleaner, greener future for generations to come. Alhamdulillah, Transport Department, Government of Sindh, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, President Asif Ali Zardari, and Honorable Chief Minister Syed Murad Ali Shah. There are many projects in Sindh which we have introduced in Sindh, and those are the first in Pakistan. बल्दिया उज़्मा कराची शहर में नकारा स्ट्रीट लाइट्स दुरुस्त करने के लिए मुतहरिक। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं गुज़िश्ता दिनों फौजिया वहां फ्लाईओवर पर नई स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। कोशिश है कि तमाम शहरों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाए। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है बढ़ती जा रही हैं। स्ट्रीट क्राइम में इजाफे की वजह एक ये भी है कि शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराओं पर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो नाकारा हैं, जिसके बायस मुल्ज़िमान आते हैं, शहरियों को लूटते हैं और बाआसानी फ़रार हो जाते हैं। तो स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने के लिए जो बल्दिया उज़्मा कराची क्या इकदाम उठा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। देखिए, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से पिछली दफ़ा जो शहर में बंद थी उनको दोबारा रीस्टेट कर लिया गया। जहाँ लाइट टूटी हुई थी वहाँ नई लाइटें लगाई हैं। जैसे अभी पिछले हफ्ता आपने देखा मेयर साहब ने फौजिया वाब फ्लाईओवर पर नई लाइटों का इफ्तिताह किया। इसी तरह पूरे शहर में जहाँ जहाँ लाइटें बंद हैं उनको दोबारा नई की जा रही हैं और दोबारा रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर मेंटेनेंस जहाँ जहाँ नई ज़रूरत होती है तो वहाँ नई लाइटिंग के लिए भी अहकामात KMC को दी जा चुकी है। अच्छा सलमान भाई, हम ये भी देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की भी बातें हो रही हैं, तो इस पर जो है कब तक अमल दरामद होगा और क्या इस पर काम जारी है? जी, इस पर अहकामात मेयर साहब ने दे दिए हैं, तो इस पर भी काम जारी है और इस पर वर्किंग हो रही है। एस्टीमेट वगैरह बना रहे हैं क्या कॉस्ट आएगा, तो उसको भी इस बजट में इंशाल्लाह लेकर आएंगे ताकि इलेक्ट्रिक से भी जो बिलिंग की वजह से और सोलर लाइट लगेंगे तो सोलर लाइट देर पा और बेहतर होंगे। तो कोशिश यही है कि हम तमाम शाहराओं पर सोलर लाइट
लगाएं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इस शहर की रोशनियां जो है एक बार फिर से बहाल की जाएंगी और जिन अहम तरीन शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, जबकि जल्द जो है कराची की अहम तरीन शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो सोलर सिस्टम पर भी मुंतकिल करेंगे। इस सिलसिले में जो है वो काम जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। नाइजीरिया से आने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। हामिद सफ़ीर नामी मुसाफिर प्रवास के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। मुलजिम का असल नाम कैसर शहबाज है और ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। मजीद जानते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नाइजीरिया से आने वाले मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हामिद सफ़ीर नामी मुसाफिर बैनुल-अक़वामी प्रवास के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। मुलजिम का असल नाम कैसर शहबाज है और ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से बताया जा रहा है। मुलजिम ने हामिद सफ़ीर के पासपोर्ट पर टैंपरिंग करके अपनी तस्वीर लगाई। मज़कूरा पासपोर्ट पर जो बार्सिलोना की जाली स्टैम्प लगी हुई थी, जबकि मज़कूरा पासपोर्ट पर बैरून-ए-मुल्क की भी जाली स्टैम्प मौजूद थी। FIA काम से बारी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम अपने पासपोर्ट पर पाकिस्तान से UAE गया। मुलजिम ने टेम्पर शुदा पासपोर्ट UAE से स्पेन जाने की कोशिश की। मुलजिम ने एजेंट से बाहरी रुकन के एवज मज़कूरा पासपोर्ट हासिल किया। मुलजिम को जो है वो मज़कूरा कार्रवाई के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कराची मुंतकिल कर दिया। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। पुलिस वेलफेयर के नाम पर कराची के मुतादिद थानों में कमर्शियल सरगर्मियां चलने का इंकशाफ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की ज़मीन पर कायम दुकानें खाली नहीं कराई गईं। मज़ीद बताएंगे सलमान सलीम। जी बिल्कुल, देखें पुलिस वेलफेयर की नाम पर लाखों रुपए जो है वो कमाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक केस सामने आया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि थाने की ज़मीनों के ऊपर दुकानें कायम की गई हैं, पेट्रोल पंप्स कायम किए गए हैं, दीगर कारोबारी मराकज़ कायम किए गए हैं। ताहम उसके हवाले से जो है वो केस में पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि इन दुकानों को, इन ज़मीनों को जो है वो खाली कराया जाए। मेरे कैमरामैन हारिस इस वक्त आपको दिखा सकते हैं, हम लोग नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने के बाहर मौजूद हैं। दोनों अतराफ़ जो हैं वो दुकानें कायम की गई हैं। इन दुकानों के बारे में जब हमने मुतालिका पुलिस अफसरान से बात की तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है। वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकता है। इसी हवाले से अगर हम लोग तफसीलात की बात करें तो ज़िले किमाड़ी में एक पेट्रोल पंप और 6 दुकानें तामीर की गई। इसी तरह कराची ज़िले सिटी के अंदर 304 दुकानें, 66 फ्लैट, 8 गोदाम और 62 दफातर जो हैं वो तामीर हैं। ज़िला वस्ती में 70 दुकानें, मलीर में एक पेट्रोल पंप पुलिस की ज़मीन पर कायम है जिसको खाली कराने के फौरी अहकामात जारी किए गए हैं। लेकिन पुलिस को अब तक जो है वो किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ। नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की हदूद ये लगती है, इस मेरे बाउंड्री वॉल के अंदर 2 थाने हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद भी और हैदरी भी है। ताहम दोनों में से किसी भी थाने को अब तक एनक्रोचमेंट खाली कराने के बारे में नहीं कहा गया। दुकानें जो हैं ये पुलिस की ज़मीन के ऊपर कायम हैं। कोर्ट ने इस बात का जो है वो फैसला किया है कि ये ज़मीनों को खाली कराया जाए, दुकानों को खाली कराया जाए। पेट्रोल पंप्स हैं या कोई दफातर बने हुए हैं उनको भी जो है वो खाली कराया जाए। तो दोनों अतराफ़ जो है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि थाने के बाहर दुकानें मौजूद हैं। दुकानदारों का कहना है कि अरसा दराज से जो है वो यहाँ पर दुकानें उनकी जानिब से कायम की गई हैं, लेकिन आज तक जो है वो दुकान खाली कराने का नहीं कहा गया। ताहम पुलिस जो है वो पुलिस को अब तक अहकामात इस चीज़ के प्रॉपर तरीके से जारी नहीं हुए हैं कि वो दुकानें जो हैं वो खाली कराएं। SHO से हमारी बात हुई है नॉर्थ नाज़िमाबाद के, उनका भी कहना है कि अब तक आला अफसरान की जानिब से कोई अहकामात नहीं आए कि इन दुकानों को खाली करवाना है या इन दुकानों को मसमार कराना है। 30 अप्रैल को डकैती मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाला डकैत पाकिस्तान बाजार पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी SSP वेस्ट डॉक्टर हफीज़ बुगटी के साथ मौजूद हैं, वही मज़ीद बताएंगी। बिल्कुल, देखिए ज़िला वेस्ट पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। डकैती मज़ाहमत पर जो है वो शहरी को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP वेस्ट डॉक्टर हफीज़ुर रहमान बुगटी के हुक्म पर जो है वो उनकी सरबराही में टीम तश्कील दी गई थी, जिसके बाद इस मर्डर केस को डिटेक्ट किया गया है। सर, हम देख रहे हैं कि एक और मर्डर केस डिटेक्ट किया आप लोगों ने। जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक शहरी को कत्ल किया था, कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि मुलजिमान जाके अपना हेयर कट चेंज किया उसने बार्बर शॉप जाकर, और फिर कपड़े भी उसने वही पहने हुए थे। तो मतलब ये शांगला का रहायशी आप बता रहे हैं और कस्बा में रहता था,
तो क्या ये आदि मुजरिम है? और साथ में ये बताइएगा क्या इसने हेयर कट चेंज करवा के पहले कैसा हेयर कट था और बाद में इसने कैसा हेयर कट करवाया? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है। हेयर कट पे आपने ज़्यादा तवज्जो ज़ोर दी है। बेसिकली ये है कि ये रिकॉर्ड होल्डर है, 780 का मुकदमा है इस पे। पुलिस के साथ पहले इसका मुकाबला रहा है। 4 लोगों का ये इनका गैंग है, 4 लोगों पे मुश्तमिल है। और ये 30 अप्रैल को इन्होंने ये वारदात की थी जिसमें अब्दुल्ला नामी एक शहरी जाम बहक हुए थे। इंसिडेंट के राइट आफ्टर इंसिडेंट ही वेंट टू अ बार्बर शॉप एंड गॉट हिज हेयर कट। और बेसिकली ये है कि उसने बिल्कुल प्रॉपर अपनी ट्रिमिंग किया जैसे वो फौजी हेयर कट होता है, टू डिसीव द पुलिस एंड टू चेंज हिज डिस्गाइज हिज आउटलुक। और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस हमने कलेक्ट की थी और साथ हमने अपनी जो इन्फॉर्मर्स हैं, ग्राउंड इंटेलिजेंस हैं, वो हमने वहाँ पे फैलाए। तो SHO पाकिस्तान बाज़ार इमाम बख्श लाशारी और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। टाइमली हमने इसको अरेस्ट किया। 3 दिन के अंदर डकैती मज़ामत पर कत्ल शहरी को कत्ल करने वाला जो मरकजी मुलजिम है वो गिरफ्तार किया गया है। और ये डॉक्टर हफीज़ बुख्ती की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो कराची में सामने आई है कि हम देख रहे हैं कि कराची पुलिस ने जो है वो डकैती मर्डर कत्ल का मरकजी मुलजिम जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार किया है और मरकजी मुलजिम ये बताया जा रहा है। जी